Morning class, this is class 7th and you are going to study English subject. Now I am going to explain you chapter number 2, A Gift of Chappals. Now before you read, about the story is given, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. The Madras is now said as Chennai and Mridu lives there with her grandmother Tapi and grandfather Tata. One afternoon, Tapi takes her to meet her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. So one day she takes Mridu, means grandmother takes Mridu to meet her cousins Ravi, Ravi, Lali and Meena. Now we are going to start the chapter, A Gift of Chappals. Now first paragraph, a smiling Rukumani threw open the door. When they went there, a smiling girl came there. Her name was Rukumani. She opened the gate. उसने गेट खोला. जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, she opened the gate. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She let them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually, with dust. You could see the color mark of every two on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scarly. Now, explanation of this paragraph. A smiling Rukumani threw open the door. When they reached there, जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो एक छोटी सी लड़की गर्ल केम स्माइलिंग एंड ओपन द गेट. उसने गेट खोला. हर नेम वाज रुकुमनी. Ravi and Meena rushed out to her two other cousins, means Ravi and Meena. They also came out of the house, and Ravi pulled Mridu into the house. And with excitement, Ravi just pulled Mridu into the house. वो खींच कर उसको घर में ले जाने लगी. Wait, now Mridu said, wait, let me take my slippers. Let me take off my slippers. Let me take off. Take off निकाल देने दो. Let me take off. Let me put my slippers outside. मुझे मेरे स्लीपर्स को बाहर रखने दो. Protested मृदु. Protested means she opposed. विरोध किया उसने. उस बात को खींचने का विरोध किया कि don't take me inside the house. Don't take me inside the house. Let me take out my slippers. मुझे अपने स्लीपर्स निकाल लेने दो. Those were grey, actually, with dust. Sorry. She laid them out neatly near a pair of large black ones. Now one place was there, and one more pair of slipper was there, kept there, and that was, she laid them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपने स्लीपर्स को वहाँ एक बड़े स्लीपर्स के ब्लैक स्लीपर के बगल में रख दिया, वहाँ पर रख दिया. Those were grey. Actually, the color of those slippers were grey. Why? With dust. डस्ट की वजह से वो ग्रे हो चुके थे. एक्चुअली यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टू ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ई स्लीपर. ई स्लीपर हैड द मार्क ऑफ डस्ट के मार्क उन पर थे, डस्ट लगे हुए थे. एंड यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ टूज के आप क्लियर मार्क उन स्लीपर्स पर देख सकते थे. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टूज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्नी. स्कॉर्नी मीन्स थिन, पतले और बड़े मार्क्स आपको उस स्लीपर्स पर दिखाई दे सकते थे. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they are. Mridu was thinking now this time that whose slippers are these. These are big slippers and dusty also. They are not clean. साफ नहीं है, डस्टी हैं, धूल से भरे हुए हैं. टू मार्क्स इस पर दिखाई दे रहे हैं. एंड शी वाज थिंकिंग, शी वाज अ लिटिल गर्ल, सो शी वाज थिंकिंग दैट हु स्लीपर्स आर दे. वो किसके स्लीपर हैं वो सोच रही थी. शी वाज सरप्राइज्ड. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर. लेकिन उसके पास समय नहीं था. शी डिडंट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं था. शी हैड नॉट टाइम टू थिंक अबाउट इट कि ये स्लीपर किसके हैं. Because Ravi dragged her to the backyard. Drag and drop. Two things are here. You have got, means you know these words in computer also. Dragging, drag.
ड्रैग, ड्रैग यू कैन से ड्रॉ, खींचना, ड्रैगिंग मीन्स खींचना। जब आप माउस को पुल करते हो कंप्यूटर में, जब आप कंप्यूटर में बताया जाता है, जब आप माउस को पुल करते हो, सॉरी इसको ड्रॉ करते हो, इसको खींचते हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। एंड ड्रॉपिंग, जब इसको आप लीव कर देते हो, छोड़ देते हो। व्हेन यू आर पुशिंग द बटन ऑफ द माउस एंड taking it from one place to another, it is called dragging, and when you are leaving the button, it is called dropping. Now drag and drop. तो बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको बैकयार्ड में ले जाना चाहता था, पीछे घर के पीछे के साइड में उसको खींच कर ले जाना चाहता था। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, वेयर थिक बिटर बेरी मतलब एक वहाँ पर बेरी का एक बुश था, एक झाड़ी वहाँ पर थी, ठीक है। बिटर मीन्स कड़वा होता है, तो एक कड़वे बेरी की वहाँ झाड़ी थी, उसके पास वो उसे खींच कर ले जाना चाहता था। मे बी कि ही वांटेड टू शो समथिंग टू मृदु। देयर इनसाइड अ टर्न, देयर इनसाइड वहाँ पर अंदर यू कुड सी अ टर्न, या मृदु सा अ टर्न फुटबॉल लाइंड विद शेकिंग एंड फील्ड विद सैंड। देयर अ फुटबॉल वॉज केप्ट, अ टर्न फुटबॉल वॉज, एक फटा हुआ, टर्न मीन्स फटा हुआ, एक फटा हुआ फुटबॉल वहाँ पर रखा हुआ था। फील्ड विद सैंड, जो सैंड से भरा हुआ था। अच्छा, लाइंड विद सैकिंग, सैक्स वहाँ रखे हुए थे, बोरे रखे हुए थे, उनके साथ वहाँ पर पड़ा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किटन एंड वन वेरी स्मॉल किटन वॉज ऑल्सो लाइंग देयर, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, लैपिंग मिल्क मीन्स इट वॉज नॉट ड्रिंकिंग। जब जीभ निकाल कर कोई भी क्रिएचर या कोई भी जब जीभ से किसी लिक्विड को ड्रिंक करने की कोशिश करता है, इट इज़ कॉल्ड लैपिंग। तो लैपिंग अप मिल्क, वो दूध को चाट रही थी, यू कैन से लैपिंग, चाट रही थी दूध को, फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। कोकोनट यू हैव सीन द कोकोनट, तो कोकोनट सेल ऑल्सो यू हैव सीन। कोकोनट का जब हाफ सेल मीन्स इसको जब आपने तोड़ दिया, हाफ हो गया, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ बाउल एंड इट वॉज फिल्ड विद मिल्क, इट वॉज फिल्ड विद मिल्क एंड किटन वॉज जस्ट लैपिंग द मिल्क फ्रॉम दिस सेल, दिस हाफ सेल ऑफ कोकोनट। वी फाउंड हिम आउटसाइड। नाउ रवि स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, रवि ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, मृदु को बताना शुरू कर दिया कि वो बिल्ली उसे कहाँ मिली, कैसे यहाँ पर आई है, व्हाट्स इट इज़ डूइंग। तो रवि टोल्ड कि वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वी फाउंड दिस किटन आउटसाइड ऑफ आवर हाउस, अपने घर के बाहर हमें ये बिल्ली मिली है दिस मॉर्निंग, इसी सुबह को। ओनली दिस मॉर्निंग वी गॉट दिस किटन आउटसाइड ऑफ द हाउस। He was mewing and mewing. अच्छा, now gender is also clear that it was the boy baby of cat. ये boy baby था, so it is used here he. Pronoun he tells that it was male. तो he was mewing and mewing. Mew the sound of the cat. म्याऊं म्याऊं करना, म्यूइंग कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पुअर थिंग। ये बेचारा घर के बाहर, ये बेचारा घर के बाहर म्यूइंग की आवाज़ निकाल रहा था, म्याऊं म्याऊं कर रहा था। Said Meena. Now Meena is explaining this thing. Now Meena is saying कि it's secret. ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट मीन्स मिस्ट्री, एक रहस्य है, राज है, हमने इसे छिपा कर रखा है। सीक्रेट मीन्स द थिंग दैट इज़ नॉट नोन टू ऑल, ऐसी चीज़ जो हर कोई नहीं जानता, हर किसी को नहीं बताया जाता, हर किसी को नहीं बताया गया है, तो इट्स अ सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस हाउस इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा, मेरी माँ ने बताया है, हम लोगों को बताया है हमारी माँ ने कि अगर अगर पाती को पता चल गया, हु इज़ पाती, पाती इज़ ग्रैंड मदर। ओके, आई टोल्ड यू कि हर ग्रैंड मदर, सी सेज टू हर ग्रैंड मदर पाती एंड थाथा टू हर ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर को थाथा कहती है, अपने ग्रैंड मदर को पाती कहती है। तो अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि पाती विल लीव, पाती घर छोड़ देगी, चली जाएगी, घर से चली जाएगी, फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, पद्दू मामा के घर चली जाएगी। इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, अगर उसे ये पता चल गया कि वी हैव अ कैट, हमारे पास एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा हमने घर में रखा है। बिकॉज ही डिडेंट लाइक क्रिएचर्स, उसे क्रिएचर्स नहीं पसंद है कि घर के अंदर हो, कोई भी हम पेट घर के अंदर रखें, सी डोंट लाइक। सो वो चली जाएगी, मामा के घर चली जाएगी अगर उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास एक क्रिएचर है या हमने कोई पेट रखा है घर में। People are always telling us to be kind animals. Now the next person is explaining, जो Ravi, Meena and
Ravi, Meena and Lali. Three cousins are there. So next one is saying कि people are always telling us to be kind to the animals. But when we are, they scream. Oh, people are always saying to us, people are always giving us suggestion. हम बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है, बड़े लोग हमें हमेशा बताते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. वी शुड बी पोलाइट टू देम. हमें उनके प्रति काइंड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए. बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जैसे ही हम उनके प्रति दयालु होने की कोशिश करते हैं, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उनको टच करने की कोशिश करते हैं, दे स्टार्ट टू स्क्रीम. वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं. स्क्रीमिंग, चीखना. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. Now, Ravi is saying to Mridu, जब मृदु उसके नज़दीक जाना चाहती है तो रवि कहता है कि don't bring that dirty creature here. उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ. Because it is dusty, it is also full of dust. धूल से भरी हुई है, भरा हुआ है, वहाँ नीचे है. तो वो कहता है कि इसको यहाँ नज़दीक मत ले आओ. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Don't you know? क्या तुम्हें पता नहीं है कि if Pati will know, तो that will be a big problem. We will get into trouble. हम मुश्किल में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे अगर पाती को पता चल जाएगा. क्यों? एक बात वो बताता है, एक चीज़ वो सामने रखता है जिससे पता चलता है कि it was really difficult to had the kitten, that kitten in the house. He is saying कि do you know? क्या तुम्हें पता है? Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? किचन से थोड़ा सा दूध इस किटन के लिए ले आना, इस बिल्ली के बच्चे के लिए ले आना कितना मुश्किल है. Pati saw me with a glass in my hand just now. अच्छा, I went in the kitchen to bring a little milk for this kitten. इस बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा दूध लेने के लिए किचन में गया, but Pati saw me. पाती ने मुझे देख लिया. वो दूध का ग्लास मेरे हाथ में उन्होंने देख लिया, मुझे दूध लाते हुए देख लिया. I was bringing the milk and Pati saw me. I told her I am very hungry. When Pati was just about to ask the question, ask the explanation that why you are taking this milk and where you are taking this milk. ये दूध तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? तो I suddenly spoke कि I told her I am very hungry. मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ. I want to drink it. मैं इसे पीना चाहता हूँ. I told her that I want to drink it. मैं इसको पीना चाहता हूँ. ये दूध मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ. But the way she looked at me, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, the way, in that strange way she looked at me, उस तरीके से, उस विचित्र तरीके से जब उन्होंने मुझे घूर करके देखा, it is the sense of this line कि घूर करके देखा उन्होंने, अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, I had to drink most of it to throw her off the scent. Throw her off the scent means mislead her so that she won't understand the real purpose. किसी को मिसगाइड करना, मिसलीड करना, उनकी थिंकिंग को चेंज करना या उनको विश्वास दिलाना कि आई एम डूइंग करेक्ट थिंग. जो चीज़ वो सोच रहे, जो सस्पेंस उनके मन में है, उस सस्पेंस को उनके मन से निकालना, उसको दूर करना. सो आई मेड यू कैन से आई मेड अ फास्ट प्रैक्टिस. मैंने एक जो है एक प्रैक्टिस किया वहाँ पर, एक तरह का शो ऑफ किया मैंने कि दिस मिल्क इज़ रियली फॉर मी ओनली. सो आई हैड टू ड्रिंक. मुझे पी लेना पड़ा. जब उन्होंने मेरी तरफ घूर कर देखा तो उनकी बात को श्योर करने के लिए कि आप गलत हो और मैंने जो बोला है कि ये दूध मेरे लिए है, अपनी बात को सही कहने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट. मुझे उस दूध का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुझे खुद पी लेना पड़ा. थ्रो ऑफ हर सेंट, मतलब उनके भ्रम को निकालने के लिए. देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, देन सी वांटेड द ग्लास बैक. वो पात्र, वो बर्तन, वो पॉट वो वापस चाहती थी कि इफ़ यू हैव फिनिश द मिल्क देन जस्ट गिव इट टू मी बैक, मुझे वापस करो. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. अगेन आई स्पोक बिकॉज रवि इज सेइंग दिस लाइन बिकॉज he had not finished all the milk, means total milk. उसने पूरा दूध नहीं पिया था, पीने का सिर्फ एक नाटक किया था, एक प्ले किया था, आप कह सकते हो कि सिर्फ एक झूठा दिखावा किया था उसने कि मैं पूरा दूध पी रहा हूँ. बट ही अ लिटिल मिल्क वाज लेफ्ट इन दैट टम्बलर, दैट ग्लास. उसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ था. सो व्हेन पाती आस्क्ड दैट टम्बलर बैक, तो रवि सेड कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ. मैं इसे खुद धुल लूँगा. पाती डोंट वरी, मैं इसे खुद साफ़ कर लूँगा, धुल लूँगा. वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं आपको मुश्किल में क्यों डालूंगा, आपको परेशानी में क्यों डालूंगा.
आई विल वॉश इट माई सेल्फ। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, पाती को मैंने कहा कि डोंट गेट इन टू ट्रबल या डोंट बी ट्रबल। ओके, सो आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद धुल लूँगा, आप रहने दो। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट सेल। नाउ आफ्टर दैट व्हेन पाती वाज जस्ट स्टैंडिंग बैक, जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ती हैं, रिलैक्स होती हैं, आई हैड टू रन, मुझे भाग कर आना पड़ा, एंड पोर द मिल्क इन टू कोकोनट सेल, और मुझे उस दूध को कोकोनट सेल में उड़ेल देना पड़ा, डाल देना पड़ा, क्योंकि आई हैड अ लिटिल टाइम, बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास बचा हुआ था। व्हेन पाती वॉज नॉट कंसनट्रेटिंग एट मी, जब वो मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाया था उन्होंने, जैसे ही टर्न बैक, वो मुड़ी, मैं भाग करके आया और जल्दी से उस दूध को, मैंने बचे हुए दूध को कोकोनट सेल में डाल दिया उस बिल्ली के बच्चे को पीने के लिए। एंड देन रन बैक, और एक काम और मैंने किया कि रन बैक, वापस भाग कर आया, एंड वॉज द टम्बलर को, उस पात्र को, उस ग्लास को मैंने धुल दिया, बर्तन को धुल दिया, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और इसके पहले कि सी रियली गॉट सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स संदेह से भर जाना, इसके पहले कि वो संदेह से भर जाए, उनका संदेह क्लियर हो जाए, उनका डाउट जो था वो क्लियर हो जाए, मैं भाग करके, दौड़ करके गया और मैंने उस टम्बलर को धुल कर वापस किचन में रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, अब हमें कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस वे इज़ नॉट करेक्ट, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि पाती इज़ नॉट सस्पिशियस एट अस, क्योंकि हमारे ऊपर उन्हें संदेह हो गया, या यू कैन से पाती इज सस्पिशियस एट हिम, उसके ऊपर संदेह हो गया था, रवि के ऊपर पाती को संदेह हो गया था, एक डाउट हो गया था कि ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, ही इज़ टेकिंग द मिल्क फॉर सम अदर पर्सन। सो दिस डाउट विल बी क्लियर, अगर ये संदेह या ये सस्पेंस अगर ओपन हो जाएगा, ये जो सीक्रेट हमने बनाकर रखा ये ओपन हो जाएगा, तो पाती विल लीव आवर हाउस, वो हमारे घर को छोड़कर चली जाएगी। सो वी हैव टू मेक सम अदर प्लान। नाउ रवि इज सेइंग कि वी हैव टू मेक सम अदर प्लान, हमें कुछ अदर प्लान बनाना पड़ेगा, अलग से योजना बनानी पड़ेगी दूध लाने के लिए, उसके लिए दूध पिलाने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास।